Hello students, I am Dr. Avnish Kumar Singh from Ambalika Institute of Management and Technology. In this session, we are going to study Schrodinger wave equation, that is very important for the examination point of view as well as to understand the quantum physics. That belongs to module 3 quantum mechanics of our subject physics. After this session, a student will able to understand the physical meaning of Schrodinger wave equation, establish time dependent and time independent Schrodinger equation, evaluate time independent Schrodinger equation with the help of time dependent Schrodinger equation. Now, first of all we have to understand what is Schrodinger wave function. Earlier we have studied that de Broglie have given the concept of wave particle duality. जैसा पहले से पता था कि wave can behave like particle, but de Broglie have introduced, have complete this duality concept that moving particle can also behave like wave. So, he have given this concept that moving particle can also behave like wave, and by considering, by analyzing that wave, we can get lot idea about that microscopic particle. And if there is a wave, that wave is known as matter wave. This is not a general wave, this is known as matter wave. And if there is a wave, there must be an equation, and that equation, that is known as matter wave equation and given by Schrodinger and known as Schrodinger wave equation. Schrodinger has introduced a wave function psi, that is the function of position and time, and with the help of this function he was able to discuss or describe the moving particle equation or matter wave equation. Schrodinger expressed the de Broglie hypothesis concerning the wave behavior of matter in mathematical form, that is adaptable to variety of physical problems without additional arbitrary assumption. Actually, this equation cannot be derived, but can be established. This is a very basic kind of information, basic kind of law. So, it is just like F is equal to ma, the Newton's law of motion. It cannot be derived, it can be stated, it can be established. So, again this equation can only be established, and with the help of Schrodinger equation we can, this is the partial differential equation, and by solving this we can get the value of psi, and again the trajectory, the position, the energy of the particle can be retrieved by solving the Schrodinger wave equation. Depend upon the situation, there are two kind of wave equation, time dependent and time independent Schrodinger equation. We know that the situations are, there are various kind of problems are there. The ideal problems are the time dependent problem, time independent problem, and the real problems are time. Like if we consider a wave, this is a kind of ideal wave having length that is infinite, having length infinite, but this is only a ideal situation, not a real situation. In real situation, wave have to be start, wave have to end. ये एक आइडियल सिचुएशन है, जबकि एक्चुअली में वेव फोर्स से, पोटेंशियल से स्टार्ट होती है and finally because of friction, because of opposition of the system, inertia of the system is have to be stopped. So, different kind of problem, so different kind of Schrodinger wave equation we have to apply. For real problem, that is this kind of problem, we have to take time dependent. Actually all the problem which exist in the world that follow the real problem, and this kind of ideal problem known as theoretical problem and can be solved with the help of time dependent Schrodinger equation. Now, first of all we are going to establish the time dependent Schrodinger equation. So, according to de Broglie hypothesis, he has said that every moving particle is associated with wave. So, we can start with the equation of wave. So, this is an exponential presentation of that wave, psi is equal to a e to power I omega t minus x by v. This is same as y is equal to a sin omega t minus phi or so, but here we have taken as psi.
रिमेंबर यहाँ जो ओमेगा यूज किया गया है दैट ओमेगा इज द property or the parameter of the wave. We have to change this equation in the form that there should be parameter that should belong to the particle. So, we have to eliminate this omega. So, we have the well established formula omega is equal to 2 pi nu and v is equal to nu lambda. So, we can put this values omega is equal to 2 pi nu. So, nu multiplied 2 pi यही रहने देते हैं and so it is nu t and again nu multiply by here, but v is equal to nu lambda. So, 1 nu will be cancelled out, it is x by lambda. Then E is equal to h nu and we know that h cross square, h cross is equal to h upon 2 pi. So, h can be written as this 2 pi h cut or h cross. So, E is equal to h nu is equal to, so h is equal to 2 pi h cross, we can just write this value of E here, and lambda is equal to h upon p by the de Broglie concept, and so we can write 2 pi h cross by p. By putting these values, so we can get this equation in terms of energy and momentum. We have nu is equal to, so nu is equal to E by 2 pi h cross and p is equal to 2 pi h cross by lambda. So, lambda की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर और न्यू की वैल्यू पुट कर दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई देखिए E और P के फॉर्म में. वेरी इंटरेस्टिंग, द सेम वेव इक्वेशन बट इन द फॉर्म ऑफ द पैरामीटर दोज बिलोंग्स टू पार्टिकल E and P, energy and momentum. Now, we have to apply all over operation on this equation. Now, time dependent Schrodinger equation we have to prove, we have to derive, we have to establish, and in order to that we have evaluated the psi that belong to the particle, actually the equation of wave, but belong to the particle. So, the total energy of particle that is given by E is equal to kinetic energy plus potential energy, and we know that classical kinetic energy that is given by half mv square, और ऊपर नीचे देखिए m मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो गया m square v square that can be written as p square. So, it is p square by 2m, again the same formula as half mv square, and the potential. Now, potential can have any value. Since changing the हम potential जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वहाँ पर पार्टिकल का बिहेवियर भी अपने हिसाब से बदलता जाएगा. Now, multiplying the psi is the function, multiply psi in this equation. So, we have E psi is equal to p square by 2m psi plus v psi. Now, we have E psi here, we have E psi here, we have p square psi here, and from this equation we have to evaluate p psi and p square psi and E psi. How we can do it? Here we can see the coefficient of time. What is the coefficient of time? Minus I by h cross into E. Just see it carefully. Coefficient of time on the e to power में e t का coefficient, time का coefficient क्या है? Minus I by h cross into E. And what is the coefficient of x? What is the coefficient of position? Minus minus plus हो गया, I by h cross p, I by h cross p. Now, जैसे मालूम है, हमें अगर मान लीजिए फंक्शन हमारे को इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट कर दें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ये कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ई टू पावर ए एक्स. अगेन हियर वी नो दैट ई टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू वाई, सो वी कैन राइट इट ए वाई. बिल्कुल वही फंडामेंटल यूज करना है हमको, and we have to evaluate the value of E psi and P square psi from this equation. कैसे डिफरेंशिएट करते जाएं? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू x. सो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार कोफिशिएंट आएगा, दो बार डिफरेंशिएट कर दें, दो बार कोफिशिएंट बाहर आएगा. सो डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, नाउ ए और जो कोफिशिएंट बताया था, क्या बताया गया था? आई पी बाई एच क्रॉस, वो बाहर आ गया, रेस्ट इज सेम. दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा देखें, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, एंड वी हैव अगेन यहां स्क्वायर लग गया, दो बार बाहर आ गया, क्या? आई बाई एच क्रॉस इंटू पी, दिस वन.
एंड अगेन दिस होल थिंग, ये और ये मिला करके क्या बन गया फिर से साई. सो वी हैव, एंड आई स्क्वायर इज -1, सो इट इज माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई. सो व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साई. यही निकालना था हमको, हमें पी स्क्वायर साई निकालना था और ई साई निकालना था. तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर साई, दैट इज माइनस, ये एच स्क्वायर चला गया इधर, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम और t, you can say we have del psi by del t. अब इस बार क्या होगा, इस बार टाइम का कोफिशिएंट बाहर आएगा. टाइम का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई. सो माइनस आई बाई एच क्रॉस ई कम्स आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ थिंग that again becomes psi. So we have minus I e by h cross into psi, correct. So we can calculate the value of E psi. E psi निकालें यहाँ से, E psi is equal to, बाकी इधर लेते जाएं, minus h cross by I del psi by del t. Okay. Now we have all two values. We have E psi. This old equation number 2, we have E psi is equal to P square by 2m, that is हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. E psi is equal to P square by 2m psi plus V psi. एंड हमने अभी निकाला P square psi and E psi. So what we can do, we can put E psi value here and P square psi value here. और जैसे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, we can get the result. क्या देखें यहाँ पर, ई साई की वैल्यू माइनस एच क्रॉस बाई आई डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई अपॉन 2m. सो 2m नीचे रहेगा और बाकी क्या था, माइनस एच क्रॉस, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल स्क्वायर प्लस वी साई. अब ये इक्वेशन अपने आप में रिजल्ट है, बट द फेमस फॉर्म इज, हम यहाँ पर ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट इज -1, माइनस विल बी कैंसिल आउट, एंड फाइनली वी हैव आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई. दैट इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन. रिमेंबर, जब भी हमें v की वैल्यू दी होगी, v की वैल्यू पुट करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास होगा. इसको जब 3 डायमेंशन में देखना चाहेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ x है, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस x, y एंड z, और तीनों को इंट्रोड्यूस कर दें, देन वी हैव, यहाँ से साई कॉमन निकालें एंड वी कैन राइट दिस कैपिटल डेल स्क्वायर, दैट इज डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर. तो 3 डायमेंशन में इक्वेशन हो गई. इक्वेशन नंबर 6. v की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, v की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ व्हाट इज v की वैल्यू, v की वैल्यू मतलब पोटेंशियल क्या अप्लाई किया, किस तरह का फोर्स अप्लाई किया. अगर कोई सीधी रेखा में जा रहा है पार्टिकल, इसका मतलब इस तरह का फोर्स अप्लाई हुआ, इस तरह का पोटेंशियल एक सीधी रेखा में जाए. अगर वो इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो इसलिए इस तरह जा रहा है कि उसमें इस तरह का फोर्स अप्लाई किया, इस तरह का पोटेंशियल अप्लाई किया गया. तो आपको सिचुएशन के हिसाब से v की वैल्यू पुट करनी है. वॉट एवर द मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल, दैट डिपेंड अपॉन द फोर्स. तो उस हिसाब से आपको साई ये वैल्यू इस पर पुट करनी है v की और साई को निकाल लेना है. यहां तक रिजल्ट था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म में पूछ लेता है, तो 2 लाइन और कर देंगे भाई. क्या कर देंगे, ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने सॉल्व की थी और इसमें ये साई को अलग कर लें, साई को कॉमन निकाल लें. देखें, यहाँ साई कॉमन निकालिए, ये आ गया, यहाँ साई कॉमन निकालिए, ये आ गया. नाउ वी हैव दिस फंक्शन. क्या है, फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटर. आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, दैट इज ई कैप, एंड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, दैट इज एच कैप. अभी हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन क्या होते हैं, बट यहाँ ये समझें कि ये वैल्यू कहलाती है एनर्जी ऑपरेटर एंड दिस इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक पूछ लेता है, तो आपने जो लास्ट इक्वेशन सॉल्व की उसके बाद ये 3 और पॉइंट सॉल्व करेंगे एंड वी कैन गेट दिस इक्वेशन. अगेन दिस इज नोन एज एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज फंक्शन, दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दिस इज फंक्शन. सो now
we have to derive time independent Schrodinger equation, also known as steady state equation. मतलब वहां पर टाइम का कोई कोफिशिएंट नहीं. अभी देखा था हमने साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बोथ, बट हम लोग उस टर्म में बात करें कि सिर्फ साई किसका फंक्शन है, पोजीशन का. टाइम को वहां से एलिमिनेट कर दें. दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. पहला तरीका इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, जो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और दूसरा कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में हम लोग टाइम को हटा दें बाय यूजिंग मैथमेटिकल डिटेल्स, और वी कैन गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज वही इक्वेशन विदाउट टाइम फंक्शन. सो अब यहां से फिर वही वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, और ये इक्वेशन देखें. द डिफरेंशियल वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर. दिस इज द फेमस वेव इक्वेशन, और ये आपने डिराइव किया है आपने मॉड्यूल 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल जहाँ पर सॉल्व किया है, वहाँ पर ये इक्वेशन देखी है आपने. ये 3 डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम. एक्स वाई जेड तीनों होगा, मतलब 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं. और अगर सिर्फ एक्स होगा, वाई और जेड नहीं होगा, तो इसका मतलब हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं. ये हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन में बी रिटन एज, ये देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग सॉल्व नहीं करने जा रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन है. सॉल्व करने पर रिजल्ट ये आ रहा है, साई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड टी, पोजिशन का फंक्शन, टाइम का फंक्शन. एंड रिजल्ट जो आ रहा है वो उसके 2 फैक्टर हैं. वन इज साई इज इक्वल टू साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. रिमेंबर ये दोनों साई है, दोनों की शक्ल बिल्कुल फर्क है, याद रखें बच्चों. ये था कैपिटल साई एंड दिस इज नोन एज, ये इसको बल्कि इस तरह दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, कैपिटल साई एंड स्मॉल साई. फिर से कैपिटल साई एंड स्मॉल साई. और ये देखें यहाँ तो बना ही है वैसे, कैपिटल साई स्मॉल साई. फर्क को ध्यान रखेंगे, ये साई फंक्शन है पोजीशन टाइम बोथ, और ये साई फंक्शन किसका है, पोजीशन ओनली, और टाइम फंक्शन अलग है, e टू पावर आई ओमेगा टी. ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का हो गया. नाउ बट अब हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर दें और ये वैल्यू पुट कर दें, कहाँ से सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके. साई को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार और टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर दें, देन देखें क्या होता है. डेल स्क्वायर, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे पहले देखा कोफिशिएंट 2 बार बाहर आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल साई वैसे रहेगा. अब हमने ब्रैकेट में ये एक्स वाई जेड नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रहे कि हमारा ये सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है. e टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू, नाउ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो माइनस इज हियर, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल साई e टू पावर आई ओमेगा टी, दैट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगेन बाय, हमें चाहिए अब पोजीशन चाहिए, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन. अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इफ 2 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, नाउ या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह दें, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डेल स्क्वायर साई बाय डेल. अब यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ भी साई लिखा है, यहाँ भी साई लिखा है, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करना. जितनी बार कैपिटल साई डिफरेंशिएट होगा उतनी बार स्मॉल साई डिफरेंशिएट होगा. तो हमने यहाँ देखो लगा दिया डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर. साई दोनों अलग अलग है, e टू पावर आई ओमेगा टी. सो वी हैव इक्वेशन नंबर 3, वी हैव इक्वेशन नंबर 4. वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. कैसे देखें यहाँ पर, वी हैव इक्वेशन नंबर 1, we have equation number 2 and 3. So we can put this value here and put, और ये वैल्यूज पुट कर दें तो देखें यहाँ पर डेल स्क्वायर स्मॉल. नाउ वी कैन सी दिस इक्वेशन हैविंग ओनली द वैल्यू ऑफ स्मॉल साई, कैपिटल साई एलिमिनेट हो चुका है, और स्मॉल साई किसका फंक्शन था, सिर्फ पोजीशन का. तो अब ये इक्वेशन किसकी बची, सिर्फ पोजीशन की. टाइम का थोड़ा फैक्टर था, बट टाइम का फैक्टर यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया. वैल्यू पुट करने पर e टू पावर आई ओमेगा टी दोनों साइड में कैंसिल हो गया. नाउ अभी ये जनरल फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो हमारे पास यहाँ है ओमेगा बाई वी स्क्वायर. इसको सॉल्व करने जाए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो न्यू की वैल्यू यहाँ पुट की और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने. सो वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी है,
अपॉन एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है। सो वी कैन जस्ट टेक वी हियर, तो यहाँ अगर वी आ जाए, बल्कि न्यू है यहाँ पर, न्यू आ जाए, देखें यहाँ पर, तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, न्यू को रिप्लेस कर चुके हैं, वी है, तो ओमेगा बाई वी, इसको यहाँ वी ले जाएं इस साइड में, तो हम ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बाकी को स्क्वायर कर दें, पी ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ओमेगा बाई वी स्क्वायर, यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ से उठेगा, यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट करने तब क्या हो गया, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 वी हैव डेल स्क्वायर साई बाई, अब ये ई टू पावर कैंसिल हो गया है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर साई, ये वैल्यू आ गई, माइनस साइन पहले से था वो माइनस साइन आ गया। नाउ वी हैव टू अगेन टेक दिस वैल्यू ऑफ P, क्या कर दें, वी नो दैट E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लासिकल फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज P स्क्वायर बाई 2m, सो P स्क्वायर बाई 2m, एंड यहाँ से P स्क्वायर अगर हम निकाल पाएँ और उठा के यहाँ पुट करें तब क्या देखें, तो P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू E माइनस वी, और P स्क्वायर 2m उधर चला गया, 2m E माइनस वी, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ P स्क्वायर हियर, व्हाट वी गेट, लिसन हियर, ये P स्क्वायर हमारे पास, ये इक्वेशन पहले से थी, ये P स्क्वायर अभी निकाला हमने, ये उठा के यहाँ पुट कर दिया, पुट कर दिया तो क्या मिला भाई, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस, एच स्क्वायर नॉट एच क्रॉस, 2m E माइनस वी साई। नाउ h इज इक्वल टू 2 पाई एच क्रॉस और h कट, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ h हियर, तो यहाँ देखें ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर था ये, और बचा क्या, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस वी। नाउ दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, see it carefully. Here we have a small psi, that is the function of position, and there is no time expression. So this is a steady state equation, this is free from time, only depend upon the position, so known as time independent Schrodinger equation in one dimension. Again if you want to just take it in 3 dimension, तो इस function की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, ईजीएस्ट केस क्या होता है कि ये जो v है ये v0 हो जाए, हम लोग केस देखेंगे एक अभी नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पर v इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो ईजीएस्ट केस की v0 हो जाए, v0 हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, और इसी को 3 डायमेंशन में लिखना बताया हमने, तो x की जगह पर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड सेम कैन रिटन एज डेल स्क्वायर। सो 3 डायमेंशन में डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी psi is equal to 0. Now, for given value of potential V, for a particle psi can be evaluated with the help of this equation. तो हमने देखा टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। देयर इज अनदर वे जिसकी डिस्कस किया था हमने शुरुआत में, कि हम टाइम डिपेंडेंट में से टाइम को एलिमिनेट कर पाएँ और फाइनली मिले हमें क्या, टाइम इंडिपेंडेंट। कैसे देखें, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास देखें ये था टाइम, ये शुरू की इक्वेशन थी, वही जो वेव से हमने पार्टिकल की इक्वेशन निकाली और उसमें पैरामीटर रिप्लेस करके उसको इस फॉर्म में ले आए कि एनर्जी एंड मोमेंटम दिख रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास कैन बी, द वेव फंक्शन साई एक्स टी कैन बी सेपरेटेड। नाउ दिस फंक्शन कैन बी सेपरेटेड इन 2 पार्ट। क्या देखें, time and position. So we can write e to power ipx by h cross e to power minus i e t upon h cross। 2 पार्ट हो गए। अब इसको 2 पार्ट में हम ये वाला पार्ट मान लें स्मॉल साई, दैट इज a e to power i p x by h cross, इसको मान लें स्मॉल साई x। तो अगर इसको वैल्यू पुट कर दें तब क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन में कैपिटल साई दैट इज पोजिशन एंड टाइम is equal to position function and time function. Now this capital psi simply can be put in time dependent. देखें यहाँ पर, now by differentiating equation 2 twice with respect to position or with respect to x,
तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये साई सिर्फ था वहां पर पोजीशन का फैक्टर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर आ गया। अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब टाइम का फंक्शन करेंगे तो टाइम का कोफिशिएंट माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, ये बाहर आ गया। सो वी हैव डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर एंड वी हैव डेल साई बाय डेल टी एंड वी हैव साई आल्सो। नाउ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यहां पर देखो डेल साई बाय डेल टी एंड डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी डेल स्क्वायर एंड साई। सो वी कैन पुट दीज 3 वैल्यूज, ये तीनों वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ये 3 से 4 से और शुरुआत वाले इक्वेशन से हम पांचों पुट कर दें। कैसे, यहाँ देखें, ये देखें हमारे पास साई है, हमारे पास डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर है, हमारे पास डेल साई डेल टी है। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर और यहाँ पुट कर दें, तब क्या होगा, यहाँ पुट कर दिया हमने तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये e टू पावर वाला फंक्शन, टाइम वाला फंक्शन हर जगह कॉमन है, दैट विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वी साई ऑनली, और यहाँ पर एच क्रॉस देखिए कैंसिल हो गया, I and I square and that will be minus I square, that is 1. So it is E psi, the rest is only E psi, I भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, केवल E psi बचा। यहाँ क्या बचा था, V psi। तो E psi is equal to minus H cross square upon 2m del square psi by del square plus V psi. Now we can rearrange this equation, इसको एक साइड ले जाए, इसको ये कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें जाके उधर, तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर स्मॉल साई बाय डेल स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। द सेम इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड अर्लियर, उसको हम लोग अलग मेथड से, इंडिपेंडेंट मेथड से अप्लाई किया था, और यहाँ पर रिजल्ट है हमारे पास डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, दैट इज इन 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में हो गया और ये 3 डायमेंशन में हो गया। तो हमने क्या किया, सेम इक्वेशन को हमने डिराइव किया टाइम डिपेंडेंट से। तो 2 मेथड हैं, एग्जाम में कैसा पूछता है उस पर ध्यान दें, कुछ नहीं कहा है, आप जो मेथड अप्लाई कर दोनों पे नंबर मिलता है। और अगर आपको बोल देता है किसी पर्टिकुलर मेथड से अप्लाई करना है तो मेथड से अप्लाई कर दें। सो वी हैव डिराइव्ड हियर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, डिराइव क्या कहते हैं, एस्टैब्लिश, दोनों इक्वेशन हमने एस्टैब्लिश किया। थैंक यू।